Yes, good morning, everyone. Yesterday, we have read about the maps, okay, and the uses of map and what, yeah, or who makes the map and what is the process of making map called. Okay, yesterday we have read about this. So, I gave you the example that if we were in a mall and we want to find where the food zone is or where the game zone is, so what we will do? We will look on the map. So same with that, I am just showing a small video. Ki there is a one girl who wants to find some store. So let's see how is gonna do, what she is going to do, and how she is going to find out the location of particular store. So here I am just showing you a small video. So let's have a look. Learning about maps. Have you ever got lost in a mall? Or confused about the floor in which your favorite game store or ice cream parlor is? To help you at such times is a display that shows the location of places, the layout, the entry and exit points and so on. Maps help you find your way in large hospitals, supermarkets, malls, zoos, museums, amusement parks, apartment and office complexes and so on. But how will you know where you are? You will see a pointer telling you you are here. This is the icon that tells you your location on a map. Maps tell you about where you are, and they also tell you about the distance, direction and size of a place you might want to be in. Once upon a time, when maps were only printed on paper, some maps had the names of places which did not exist. This was done to detect copying of maps. There are many interesting things to learn about maps. Are you ready? Yes, today we are going to learn how do we study a map. कि हम जो है एक मैप को कैसे देख सकते हैं, कैसे उसको पढ़ सकते हैं, कौन सी लोकेशन का हम कैसे पता लगा सकते हैं. Okay, in order to read and understand a map, we need to know about its different parts or features. अगर हमें किसी मैप को रीड करना है, उसको समझना है, उसको अंडरस्टैंड करना है, तो what we want to know, हमें उसके जो है डिफरेंट पार्ट्स और उसके जो है फीचर्स के बारे में पता होना चाहिए. कि अब एक मैप में क्या होता है, खूब सारी ड्राइंग्स बनी हुई होती है, उस ड्राइंग्स के आसपास भी क्या होता है, हमें और भी चीजें दी हुई होती है एक्सप्लेनेशन के लिए. हर एक जो सिंबल होता है मैप पे, उसका कुछ ना कुछ जो है वो कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए होती है हमको. ओके, सो फॉर एग्जांपल फर्स्ट इज हेडिंग. हेडिंग क्या होता है, आपको पता होगा. हेडिंग तो बहुत नॉर्मल चीज है. जैसे अपन कोई नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो हम उसकी एक हेडिंग लिखते हैं. ठीक है, कि जैसे हम चैप्टर 1 कर रहे हैं तो उसकी हेडिंग क्या है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है लर्निंग अबाउट मैप्स. वैसे ही हर एक मैप पे जो है हेडिंग दी हुई होती है, या आप कह सकते हैं टाइटल दिया हुआ होता है, जो हमें मैप के बारे में बताता है कि ये जो पर्टिकुलर मैप है वो किसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देगा. लाइक फॉरेस्ट के बारे में, या रेनफॉल के बारे में, या उसकी बाउंड्रीज के बारे में. तो जो हेडिंग होती है उससे हमें पता चलता है कि जो मैप है वो किसकी इंफॉर्मेशन हमें देना चाहता है. So the heading of a map state what the map shows, like distribution of forest, mineral boundaries and so on. यही मैंने आपको बताया कि मैप जो है, मैप की जो हेडिंग है उसी से ही हमें क्लियर हो जाता है कि भाई मैप में जो है हमें क्या चीज देखने को मिलेगी. ठीक है, जैसे स्टेट्स डिवाइड होते हैं तो हमें कुछ मैप में जो हेडिंग होगी स्टेट्स होगा. ठीक है, तो सबका अलग अलग हेडिंग होती है और वो शो करता है. हेडिंग जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि उसी से ही जो है हमें सारी चीजें पता चलती है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी हम मैप को स्टडी करेंगे या जब हम मैप को देखेंगे तो हमें सबसे पहले उसकी हेडिंग देखनी पड़ेगी कि जो मैप है वो किसके बारे में बात कर रहा है, यानी कि वो किसके बारे में जो है हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना चाहता है. Okay, then next feature is direction. A map usually has a compass rose to show the four cardinal directions
north, south, east and west. Most maps are drawn with the north direction at the top of the page, shown with the arrow marked N. You can find out the major direction with the help of a device named compass. अगर हमें कुछ डायरेक्शन पता लगानी है तो एक चीज होती है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक डिवाइस होता है जिसकी वजह से या जिसकी हेल्प से जो है हम डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं। अब हमारे जो है 4 कार्डिनल डायरेक्शंस है, यानी कि 4 इंपॉर्टेंट एसेंशियल डायरेक्शंस है हमारे। सबने सुना होगा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। देखो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखो आपको दिया हुआ है, ये नॉर्थ है, देन ये साउथ है, देन ईस्ट, देन ये वेस्ट। ओके, तो ये जो है 4 इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस यानी कि एसेंशियल डायरेक्शंस है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। तो हमें अगर कभी अपना नॉर्मल डे टू डे लाइफ में अगर हमें पता लगाना है कि हम कौन सी डायरेक्शन में खड़े हैं या हम किस तरफ खड़े हैं, कौन सी डायरेक्शन में, जैसे आपने बहुत बार ऐसा सोचा होगा कि लाइक हमें डायरेक्शन पता करनी है किसी चीज की, तो हम किसकी हेल्प से डायरेक्शन पता कर सकते हैं? कंपास की हेल्प से हम जो है डायरेक्शन पता लगा सकते हैं। हम वो एक डिवाइस यूज करते हैं जिसका नेम है कंपास। इवन आजकल जो है सबके फोन में, स्मार्टफोन्स में जो है ये कंपास नाम का एक जो ऐप है वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता ही है, जो आपको डायरेक्शन बताता है कि आप अभी कौन सी डायरेक्शन में खड़े हैं। आप नॉर्थ की तरफ खड़े हैं, ईस्ट की तरफ खड़े हैं, साउथ की तरफ हैं, वेस्ट की तरफ। ठीक है, तो जो मैप है वो उसमें जो है ये 4 डायरेक्शंस जो हैं दिखती हैं, दिखाई देती हैं। वो जो मैप है वो शो करता है कि कौन सा जो है कौन सी डायरेक्शन में। जैसे अगर हमारा जो स्टेट है या जो हमारा कंट्री है वो कौन सी डायरेक्शन में है, ठीक है, तो ये सब जो है वो कंपास की हेल्प से जो है हम पता लगा सकते हैं। 4 कार्डिनल डायरेक्शन, दीज आर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ठीक है, फिर आपको ये एक लर्निंग टिप दिया हुआ है कि अगर हमें कार्डिनल पॉइंट्स को लर्न करना है इजीली क्लॉकवाइज ऑर्डर, सबको पता है क्लॉकवाइज ऑर्डर क्या होता है, ठीक है, ऐसे हमारी वॉच चलती है, वैसे ही हमें डायरेक्शंस के बारे में, डायरेक्शंस को भी हमें उसी तरीके से याद रखना है। फर्स्ट इज नॉर्थ, देन ईस्ट, देन साउथ एंड देन वेस्ट। तो इस तरीके से हम इसको क्लॉकवाइज जो है लर्न रखेंगे डायरेक्शंस को। ये हमारी 4 कार्डिनल का मीनिंग कल मुझसे किसी ने पूछा था, तो दैट इज द एसेंशियल और इम्पोर्टेंट। ठीक है, कि इन अगर हमारे पास ये डायरेक्शंस ही नहीं हमें पता होंगी तो हम कैसे पता लगा पाएंगे कि हम कौन सी जगह पे खड़े हैं? हम कभी पता ही नहीं लगा सकते कि हम किस डायरेक्शन में खड़े हैं अनटिल अनलेस, जब तक हमें पता नहीं होगा कि हमारी 4 कार्डिनल डायरेक्शंस कौन सी है। ओके, सो इसलिए जो है ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। नॉर्थ किस तरफ होता है? नॉर्थ आप देखिए इसमें, इन ऑर्डर टू रिमेम्बर क्लॉकवाइज ऑर्डर ऑफ द कार्डिनल डायरेक्शन यू कैन लुक एट द पिक्चर एंड स्टडी द डायरेक्शन ऑन अ मैप। द टॉप इज नॉर्थ, कि मैप के जो टॉप पे होगा वो नॉर्थ होगा। देन ईस्ट इज ऑन योर राइट, आपके जो राइट हैंड साइड पे है वहां पे क्या होगा? ईस्ट होगा। देन साउथ इज एट द बॉटम, और आपके बॉटम, मैप के बॉटम में क्या होगा? साउथ होगा। देन आपके लेफ्ट हैंड साइड पे मैप के वेस्ट होगा। तो ये चीज आपको लर्न करनी है, क्लॉकवाइज नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। ओके, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी का जो लोकेशन है, किसी का जो घर है वो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आ रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, कि वो भी कौन सी लोकेशन पे खड़ा है? नॉर्थ ईस्ट पे खड़ा है। ठीक है, और अगर किसी का लोकेशन ईस्ट और साउथ के बीच में आ रहा हो वहां, तो हम उसको बोलेंगे साउथ ईस्ट। ठीक है, किसी का लोकेशन अगर वेस्ट एंड साउथ के बीच में आ रहा होगा तो वो हो जाएगा साउथ वेस्ट। किसी का नॉर्थ और वेस्ट के बीच में आ रहा होगा तो नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, आपको कार्डिनल मेन पॉइंट्स पता होने चाहिए। देन उनका जो बीच का जो पॉइंट होगा, जो बीच का जो लोकेशन होगा, वो क्या हो जाएगा? उन दोनों के नाम का मिक्सचर हो जाएगा। जैसे नॉर्थ ईस्ट का, नॉर्थ और ईस्ट के मिड का क्या हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट। साउथ एंड ईस्ट के मिड का क्या हो जाएगा? साउथ ईस्ट। साउथ और वेस्ट के मिड का क्या हो जाएगा? साउथ वेस्ट। ठीक है, सेम विद द नॉर्थ एंड वेस्ट के मिड क्या हो जाएगा? नॉर्थ वेस्ट। So these are the 4 cardinal directions, important direction की जब हम मैप की स्टडी कर रहे हैं तो हमें इन डायरेक्शंस के बारे में भी पता होना चाहिए। ओके,
तो फर्स्ट हमने पढ़ा कि हमें जो है क्या देखना चाहिए। फर्स्ट इज हेडिंग, कि हमें हमेशा मैप की हेडिंग देखनी चाहिए। देन नेक्स्ट इज डायरेक्शंस, कि हमें जो है डायरेक्शंस के बारे में पता होना चाहिए। सो नेक्स्ट इज स्केल, हमने दो चीजें ऑलरेडी पढ़ ली है, हेडिंग एंड देन डायरेक्शंस। हेडिंग के साथ साथ हमें डायरेक्शंस का भी पता होना चाहिए, और हेडिंग हमें क्या मैसेज कन्वे करना चाहती है हमें वो भी पता होना चाहिए। सो नेक्स्ट इज स्केल। आप देखेंगे आपका मैप में ऊपर साइड में ऐसे लाइंस भी दी हुई होती है। आप जब भी कोई मैप देखेंगे उसमें आप क्या देखेंगे कि उसमें ये चीज भी दी हुई होती है, मैप के साइड में एक छोटे से व्हाइट वाले बॉक्स में बनी हुई होती है। अगर आपने कभी मैप को ध्यान से देखा होगा तो उसमें आपको ऐसा स्केल जो है बना हुआ मिलेगा। सो नाउ व्हाट इज स्केल? स्केल होता क्या है और ये क्यों दिया जाता है? A map, which is a drawing of a part or whole of the earth, is much smaller than the real place. Drawing something smaller than the real size but keeping it exactly in the same shape is called drawing to a scale. देखिए स्केल क्या होता है, जैसे आपने मैथ्स में देखा होगा कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू इतना मीटर होता है, ठीक है, या 1 किलोमीटर इज इक्वल टू इतना सेंटीमीटर होता है, ये सब आपने पढ़ा होगा। जैसे 1 रुपी इज इक्वल टू जितना पैसा होता है, तो वैसे ही अब मैप में तो क्या होता है, हम एक्चुअल पूरा लोकेशन नहीं शो कर सकते। हम उसको जितना हमारे अर्थ पे जितना डिस्टेंस है हम उतना ही सेम डिस्टेंस उस मैप पे नहीं डाल सकते, ठीक है, क्योंकि वो फिर नहीं तो वो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। अगर हम अर्थ का जितना एक्चुअल डिस्टेंस है उसके अकॉर्डिंग अगर हम मैप बनाने लगे तो फिर बहुत बड़े बड़े मैप्स बनेंगे, इतने बड़े मैप बनेंगे कि हम लोग कैरी भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जो मैप है वो एक स्मॉल जो है स्मॉल ड्राइंग है। उसको स्मॉल ड्राइंग क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसमें जो है अब बिकॉज स्केल दिया हुआ होता है तो उसके अकॉर्डिंग हम एस्टिमेट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो स्केल है वो आपको इसलिए दिया जाता है कि वो एक्चुअल जो डिस्टेंस है आपका, ठीक है, उसको थोड़ा सा कम करके बताता है, ठीक है। जैसे आपका जो डिस्टेंस है मैप के अंदर और जो एक्चुअल में आपका जो डिस्टेंस होता है उसको थोड़ा सा वो कम करके बताता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप 6 किलोमीटर लिखा हुआ है तो 6 किलोमीटर मीन्स कि 6 लाख सेंटीमीटर। जैसे 100 किलोमीटर में कितना मीटर होएगा, जैसे 500 किलोमीटर में कितना मीटर होएगा, तो वो बड़ी बड़ी यूनिट्स को ना बता के वो एकदम शॉर्ट में एक्सप्लेन करता है, ठीक है। तो वो आपके जो है स्केल्स होते हैं, जो आपका एक्चुअल जो प्लेस होती है उसका जो डिस्टेंस आपको कम कुछ एस्टिमेशन पॉइंट्स में करके बताता है, ठीक है। Then some maps are large scale. Large scale maps show a lot of detail about a small area. ठीक है, अब स्केल में भी क्या होता है, एक लार्ज स्केल मैप्स होते हैं, एक स्मॉल स्केल मैप्स होते हैं। लार्ज स्केल मैप्स क्या होते हैं, जो आपको हर एक चीज का मतलब छोटी से छोटे एरिया का जो है डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब बिकॉज वो लार्ज स्केल मैप्स है तो उसमें जो डिटेल्स भी होंगे वो ज्यादा ही होंगे। इवन जो छोटे से छोटे एरिया होगा उसकी भी जो है इंफॉर्मेशन होगी या डिटेल्स होगी जो आपको ज्यादा देगा। देयर आर ऑल्सो सम स्मॉल स्केल मैप दैट शोज लेसर डिटेल्स ऑफ अ लार्ज एरिया। और जो स्मॉल स्केल मैप्स होंगे, अब बिकॉज वो स्मॉल स्केल मैप्स होंगे तो उनकी जो इंफॉर्मेशन होगी या जो डिटेलिंग वो देंगे वो कम देंगे लार्ज एरिया की, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अ मैप ऑफ अ रेजिडेंशियल कॉलोनी इज अ लार्ज स्केल मैप। कल हमने एक वो कॉलोनी का मैप देखा था, आपके फर्स्ट पेज पे आप देखिए, हमने एक मैप देखा था जिसमें हमने देखा था कि स्कूल भी दिख रहा है हमको, रोड भी दिख रही है, वहां से हमें ट्रेन जाती हुई दिख रही है। तो वो हमने क्या था, एक कॉलोनी का मैप था। तो एक वो कॉलोनी का मैप था तो उसमें एकदम हमें डीप में इंफॉर्मेशन मिल रही थी, राइट। तो जब हमें डीप में इंफॉर्मेशन मिल रही थी तो दैट मीन्स वो कौन से मैप हो गए, लार्ज स्केल मैप, ठीक है। और जो स्मॉल स्केल मैप्स होते हैं, अब जैसे किसी कंट्री का मैप है, ठीक है, उसमें हमें उस कंट्री के बारे में बहुत सारी चीजें नहीं पता होंगी। मेन या तो उसका हमें उस कंट्री का नाम पता होगा, कुछ थोड़ी बहुत उसकी इंफॉर्मेशन पता होगी, तो उसमें हमें उस कंट्री के बारे में ज्यादा चीजें नहीं पता होगी। तो जिसमें हमें कम इंफॉर्मेशन मिल रहा है, जिसमें हमें कम डिटेलिंग मिल रहा है, कम डिटेल्स मिल रहे हैं, तो वो जो मैप्स होंगे स्मॉल स्केल मैप होंगे। और जिसमें हमें बहुत सारी डिटेल्स मिल रहा है, इवन हमें छोटे से छोटी चीज के बारे में भी बहुत सारी डिटेल्स मिल रही है, तो वो कौन सा हो जाएगा, लार्ज स्केल मैप्स। और जिसमें हमें कम डिटेल्स मिल रही है दैट इज स्मॉल स्केल मैप्स, ठीक है। तो स्केलिंग जो है आपका रेशियो है डिस्टेंस पे। मैप पे आपको एक डिस्टेंस शो करने के लिए है,
शॉर्ट फॉर्म के अंदर, ठीक है, बिकॉज मैप पे हम सब एक्चुअल नहीं लिख सकते, तो उसका एक वो आपको रेशियो बताता है स्मॉल छोटा करके, ठीक है। सो वो जो होते हैं वो स्केलिंग कहलाते हैं। तो स्केलिंग में हमने पढ़ा 2 टाइप्स के होते हैं स्केलिंग, दैट इज लार्ज स्केल मैप एंड स्मॉल स्केल। देन नेक्स्ट इज सिंबल्स एंड कलर्स, कि हमें और क्या क्या पता होना चाहिए जब भी हमें कोई मैप को रीड करना है, स्टडी करना है, तो हमें उसके सिंबल्स और कलर्स के बारे में भी पता होना चाहिए। Different colors and symbols are used to show different features such as mountains, rivers, yes, mountain, rivers, cities, ports, borders, and so on. On a map, ठीक है, हमें क्या करना चाहिए, हमारे मैप पे आप देखेंगे बहुत सारे आपको डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स भी शो होते हैं, ठीक है। अभी आपको मैं एक पिक्चर भी दिखा दूंगी जिसमें आपको बहुत सारी चीजें भी दिख जाएगी कि वो क्या क्या बताना चाहता है, ओके। So on map, we will see different pictures, different features, different colors and different symbols. Cartographer use symbols or colors on a map to give plenty of information in a small space. हमने पढ़ा था कार्टोग्राफर्स कौन होते हैं। कार्टोग्राफर्स वो होते हैं, वो लोग होते हैं जो मैप बनाते हैं। अब बिकॉज वो मैप एक स्मॉल, एक पेज में हम मतलब एक स्मॉल एरिया में मैप बनता है, एक स्मॉल ड्राइंग बनती है, ठीक है, तो उसमें हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन एकदम डिटेल्स में नहीं लिख सकते। तो उस इंफॉर्मेशन को शॉर्ट में बताने के लिए उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कुछ सिंबल्स बनाए हैं, ठीक है। उन सिंबल को देख के हम लोग क्या कर सकते हैं, इनकी इंफॉर्मेशन जान सकते हैं। अब उसमें हम मैप बिकॉज ऑलरेडी इतना छोटा होता है तो हम उसमें हर एक चीज नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। तो उस इंफॉर्मेशन को देने के लिए उसने उन्होंने क्या किया, कार्टोग्राफर्स ने छोटे छोटे सिंबल्स जो हैं ड्रॉ किए, ऐसे सिंबल्स जो हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। सिंबल्स आर ड्रॉन लाइक द ऑब्जेक्ट्स दे रिप्रेजेंट। सिंबल्स, ऐसे सिंबल्स बनाए हैं जो जैसे जैसे आप जैसे क्लाउड्स है, ठीक है, तो उन्होंने क्लाउड्स का ही सिंबल बनाया है, ऐसे नहीं कि उन्होंने कोई और सिंबल बना दिया, ठीक है। तो जो सिंबल्स होंगे वो सेम ऑब्जेक्ट के जैसे ही होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अ क्लाउड विद वाटर ड्रॉप इज यूज्ड एज अ सिंबल फॉर रेनफॉल। आपने देखा होगा कभी आप अपने फोन में वेदर चेक करते हैं तो आप देखते होंगे ये क्लाउड्स हैं, ये क्लाउड में से ये जो है वाटर ड्रॉपलेट्स निकल रही है, तो ये वाटर ड्रॉपलेट निकल रही है तो दैट मीन्स क्या हो रहा है, कहीं पे रेनफॉल हो रहा है, राइट। वैसे डिफरेंट कलर आर यूज टू शो डिफरेंट फिजिकल फीचर्स। वैसे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स जो है यूज होते हैं डिफरेंट डिफरेंट चीजों के बारे में बताने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल, ब्राउन कलर इज यूज टू शो माउंटेन। अब माउंटेन्स जो होते हैं वो, उनको जो है कौन सा कलर रिप्रेजेंट करता है, ब्राउन कलर रिप्रेजेंट करता है। वैसे जो येलो कलर है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, डेजर्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। A weather map use certain symbols such as, ठीक है, आपको ये सिंबल्स पता होने चाहिए कि अगर ब्राउन कलर है तो दैट मींस ब्राउन कलर हम किस लिए शो कर रहे हैं, माउंटेन को, माउंटेन का बताने के लिए शो कर रहे हैं। येलो कलर अगर हम यूज कर रहे हैं तो दैट मींस वहां पे उस एरिया में क्या है, डेजर्ट एरिया है, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है कि अ वेदर मैप यूज सर्टेन सिंबल्स। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि आप लोग अपने फोन में वेदर देखते हैं, वेदर चेक करते हैं, तो हम देखते हैं कि अगर वो ऐसे क्लाउड्स में से सन निकल रहा है तो दैट मीन्स क्या है कि क्लाउडी डे है पार्शली, कि थोड़ी धूप भी है थोड़ी छांव भी है, ऐसा ही होता है। फिर वैसे ही एक हमने देखा कि क्लाउड्स हैं और वाटर ड्रॉपलेट निकल रही है, दैट मीन्स रेनफॉल हो रहा है, ठीक है। एक हम ये देखते हैं कि सिंबल, अगर ये सिंबल बना हुआ है तो दैट मीन्स क्या है, सन का सिंबल है, ये सन का सिंबल बना हुआ है, दैट मीन्स बाहर बहुत क्या है, बहुत तेज धूप है। फिर हमने ये देखा कि ये क्लाउड में से लाइटिंग्स निकल रही है, तो दैट मीन्स क्या है, बाहर बिजली कड़क रही है या बिजली चमक रही है, जो भी आप बोलते हैं, कि थंडर एंड लाइटनिंग हो रहा है बाहर। फिर अब क्लाउड्स में से अगर स्नोफ्लेक्स निकल रहा है तो यानी कि दैट मीन्स कहीं पे स्नोफॉल हो रहा है। तो ये सिंबल्स जो हैं इसीलिए ही बनाए गए हैं ताकि जो है हमें एक एक चीज को पूरा डिस्क्रिप्शन में नहीं लिखना पड़े। हम जैसे इसकी पिक्चर देखें या जैसे इसका सिंबल देखें तो हमें समझ आ जाना चाहिए कि कहाँ पे क्या हो रहा है। Yes, in this video we will see कि how we study map, कि हमें जो है कैसे मैप को देखना है, कैसे रीड करना है, ओके। Reading a map. Map reading is an activity which interprets symbols,
scales, and distances on maps. Every map is provided with a scale, distance, symbols, signs, colors, etc., which are helpful in reading it. The map scale shows us a ratio of map distance to real distance. It differs from map to map, but all maps are drawn according to a particular scale. If the scale is shown in the form of lines, then it is called a linear scale. These lines are divided into small parts to represent the real distance. If a map is without scale, then it is only a sketch. It is interesting to know that Christopher Columbus used a map drawn to a wrong scale, which led him to discover America. Most of the maps are drawn with north located at the top right or top left of the map. This is called the north line, and with its help, we can easily find out other directions like south, east, and west. These four major directions are called cardinal points. Also, there are four sub-directions between the four main directions, such as northeast, northwest, southeast, and southwest. There are also symbols or signs on the map which are used to show real features like bridges, dams, etc. With the help of these symbols or signs, it becomes very easy to read a map. Symbols, which are used all over the world, are called conventional symbols. Distance, direction, and symbols are collectively called as the pillars of maps. Moreover, different colors are used to represent different regions of a map. For example, water bodies such as rivers, lakes, seas, oceans, etc. are generally shown in blue. Forests, woods, and plains are usually depicted in green. Plateaus, hills, and mountains are shown with the help of yellow and brown colors. After the session on maps, the lights are turned on. Everybody starts moving towards the snack center for a break. तो आप सब लोग